Welcome students. Yesterday in previous videos we discussed the construction in present indefinite tense and some of the uses of present indefinite tense. Today in this video we will discuss some more uses of present indefinite tense. Present indefinite tense. We will discuss uses. In the previous video, we discussed three uses of present indefinite tense. First one is universal truth, the second one habitual action, and the third one is scientific truth. Third one is general quality of person, place, and thing. Today, we'll start with the new uses. Scientific facts. Anything that we read in science, whether it is a principle, it's a theory, it's a law. All the theories, facts, formulas, laws are written or spoken in present indefinite tense. The reason behind is that the scientific theory has same result all over the result. Whether you may do experiment in India or the same experiment if you do in America, the result will be the same. For example, इसके एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स के. Water freeze at 0 degree Celsius. It's a scientific fact. We can prove it at our home. Keep some water in a bowl into a fridge. Then keep the temperature 0 degree Celsius. You will find that the water gets freezed. So here we use first form of verb. Water is singular. So freezes. Water freezes at 0 degree Celsius. Second example you may take. Action and reaction dash equal and opposite. You have read this law of Newton in science books. Action and reaction dash equal and opposite. We can prove it. If we do some action, its reaction is equivalent. So here also we use first form of verb. Our subject is plural. So action and reaction are equal and opposite. So it's a scientific fact. We can prove it. Anything that you can prove at your home or in a scientific laboratory, it will be written or spoken in present indefinite tense. Second use देखिए. जनरल फैक्ट्स. जो साइंटिफिक फैक्ट्स की बात हमने की, अब कुछ जनरल फैक्ट्स की बात हम करते हैं. जनरल फैक्ट्स मीन्स द फैक्ट दैट आर ट्रू एट प्रेजेंट. जो बातें वर्तमान में इस समय सच हैं, उनके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं. सपोज योर प्लेस ऑफ लिविंग, प्लेस ऑफ लिविंग में आप ले सकते हो आई डैश
dash live in Delhi. At present, this fact is true. Later on, maybe it may get changed, but at present it is true. So, I live in Delhi. Some more example. My house face north. So, it is the direction of your house. So, at present, this situation is true. This fact is true. So, you will use present indefinite. Subject आपका singular है. Faces. My house faces north. Any other example for general facts you may take? We dash spend our weekend in Goa. We dash spend our weekend in Goa. So at present, this fact is true. Later on, you may change your place of spending the days. Maybe it may be Goa in future, it may be any other place, but at present you are spending your weekend in Goa. तो इस कंडीशन में भी हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे. वी स्पेंड, सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरलाइज्ड है, तो वी स्पेंड आवर वीकेंड इन गोवा. कोई और एग्जांपल हम ले सकते हैं. डैश shops open on Sunday. Dash shops open on Sunday. ये दुकानें रविवार के दिन खुलती हैं क्या. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो जनरल फैक्ट्स है, तो यहाँ पर भी हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे. इंट्रोगेटिव है तो डू शॉप्स, दीज शॉप्स. एक्चुअली हेयर वी विल राइट दीज शॉप्स. वी हैव टू रेफर दो शॉप्स. कौन सी शॉप्स का, डू दीज शॉप्स ओपन. तो वर्ब की फॉर्म हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये जनरल फैक्ट एट प्रेजेंट, इसलिए इस कंडीशन में भी हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे. तो साइंटिफिक फैक्ट्स है की बात कर रहे हैं, चाहे हम जनरल फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ किए जाते हैं. नेक्स्ट यूज़ देखिए, थर्ड पॉइंट हम लेते हैं. तो हमने डिस्कस किए साइंटिफिक फैक्ट्स एंड जनरल फैक्ट्स. नेक्स्ट प्लान्ड एक्शन, और या तो प्लान एक्शन होता है और फिक्स्ड timetable. Here planning of future, planning of upcoming future when we do, that is written or spoken in present indefinite tense. The second portion is fixed timetable, timetable of any organization, any school, any bank, railways, bus stands, airports. तो ये सारे फ्लाइट्स के टाइम, रेलवेज़ के टाइम जो फिक्स हैं, वो टाइम टेबल भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं. प्लान्ड एक्शन, हमने आने वाले सिचुएशन के बारे में कोई प्लानिंग कर ली है, आफ्टर 2 days व्हाट विल वी डू, और नेक्स्ट वीक व्हाट विल वी डू, तो वो सारा का सारा भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम इसका ले सकते हैं.
I dash visit Agra in next week. So here it's a pre-planned action. You have planned this action in present. It's your planning. At present, you have not visited that place. You have just planned. In present, you have planned, so we use present in definite tense here. I visit Agra in next week. She dash responds my letter tomorrow. She dash responds my letter tomorrow. It's also a pre-planned action. प्लानिंग की है कि कल जो है रिस्पॉन्स मिल जाएगा, तो इस कंडीशन में भी हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे. रेस्पॉन्सिज सिंगुलर है तो एस और एस हम यूज़ करेंगे. तो शी रेस्पॉन्सिज माई लेटर टुमारो. मे बी शी मे नॉट आंसर ऑन टुमारो बट एट प्रेजेंट इट्स अ प्लान्ड. हमने जस्ट प्लानिंग की है, ये प्लानिंग है हमारी, ये एक्चुअलिटी नहीं है. इट्स प्लानिंग ओनली. सेकेंड पार्ट इसी में है फिक्स टाइम टेबल. फिक्स टाइम टेबल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन हम बात कर सकते हैं. आर स्कूल ओपन at 8 a.m. So it's also a fixed timetable. Opening of the school time in summer, so we use present indefinite tense here. Our school opens at 8 a.m. किसी रेलवेज या बस स्टॉप में बसेस की बात कर सकते हैं, रेलवेज की टाइमिंग की बात हम कर सकते हैं. द ट्रेन at Nagpur reach at 9:15 a.m. That is the timetable of a railway. It's a fixed timetable. Because it's a timetable fixed है, तो हम यहाँ पर भी present indefinite tense use करेंगे. But in actuality, you find that most of the trains in India reaches late. जो ट्रेन्स हैं वो हमारे यहाँ पर मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स क्या रीच क्या करती हैं, वो लेट करती हैं, बहुत लेट पहुँचती है. लेकिन रेलवे का टाइम टेबल में आप देखें, उसका एक फिक्स टाइम टेबल आपको एक शेड्यूल मिलेगा, उसका वो टाइमिंग है. किसी ऑफिस का किसी का और काम हो सकता है. बैंक की ओपनिंग का टाइम हो सकता है, क्लोजिंग का टाइम हो सकता है. तो यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ किया जाएगा. तो फिक्स टाइम टेबल के लिए याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं. और प्री प्लान्ड एक्शन, हमने पहले प्लानिंग कर लिया उस एक्शन की. मे बी इट विल हैपन इन फ्यूचर, बट प्लानिंग हमने उसकी प्रेजेंट में की है. तो प्लानिंग हमारी प्रेजेंट में आएगी. जब हम करेंगे उसके बारे में उस एक्शन को, वो तब बात की बातें तब देखी जाएंगी. नेक्स्ट पॉइंट देखिए. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. प्रोवर्ब्स, जिसको हम हिंदी में लोकोक्ति बोलते हैं. जितने भी प्रोवर्ब्स, जितने भी लोकोक्ति, जितने भी इडियम्स आप पढ़ते हैं, वो सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही यूज़ किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका कोई भी.
टू मैनी कुक्स स्पॉयल द ब्रूथ। तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरलाइज्ड है, सॉरी, स्पॉयल, टू मैनी कुक्स स्पॉयल द ट्रुथ और स्पॉयल द ब्रूथ। कोई और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो ये भी लोकोक्ति है, ये भी ईडियम जो है प्रोबेबली है, तो यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करेंगे। तो प्रोवर्ब्स के अंदर भी हमें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना है। सिंगुलर सब्जेक्ट दिया है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरलाइज्ड है तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ध्यान रखना, जितने भी प्रोवर्ब्स, जितने भी लोकोक्तिस, जो आज जितने भी ईडियम्स आप पढ़ते हो, वो सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही लिखे जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं इसमें, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हम पढ़ते हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ किए जाते हैं। कौन से होते हैं प्रेजेंट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस? द सेंटेंसेस इन विच वी वांट टू कन्वे सम ऑर्डर, सम रिक्वेस्ट और सम सजेशंस, सम एडवाइस। हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को एडवाइस कर रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, वो सारा का सारा हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाता है। दूसरी इसकी पहचान क्या है इम्पेरेटिव की? देयर इज नो सब्जेक्ट इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यूज्ड। We never use any subject there because we can order somebody, we can request, we can advise to that person only who is in front of you, whom you are talking directly or indirectly. तो जिससे आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस तरीके से बात कर रहे हो उसको ही आप ऑर्डर कर सकते हो, उसको ही आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो सारे के सारे सेंटेंसेस हमारे जो है वो भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, डैश द डोर, ब्रैकेट में ओपन, तो इम्पेरेटिव है, सब्जेक्ट भी नहीं है, तो ओपन द डोर। यू आर ऑर्डरिंग समबडी टू ओपन द डोर। मोर एग्जाम्पल, प्लीज डैश हेल्प मी। तो here also it's also imperative sentence, there is no subject, you are requesting somebody, so you use present indefinite, first form of verb. Open the door, please help me, do it. You are ordering somebody, do it. तो here also first form of verb, do it, ये काम करो। तो जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस आप पढ़ोगे सारे के सारे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही डिस्कस किए जाते हैं। उनको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है, देयर इज नो यूज ऑफ एस और एस हियर। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि इस कंडीशन के अंदर भी हम जो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस के साथ भी हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। कोई एक नेक्स्ट यूज़ हम ले लेते हैं, और नेक्स्ट यूज़ आप यहाँ पे लिख लीजिए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस starting with here or there। ऐसे सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हेयर और देयर से शुरू होते हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी के अंदर रखे जाते हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसका, here dash come the bus। The sentence is started with here, so we use present indefinite tense here। Here
comes the bus. Any other example you may take? There dash go the ball. The sentence is started with there, so we use present indefinite tense here. There goes the ball. So we have to keep in mind that when your sentence is started here and there, and being this sentence is closed by this sign, you have to keep in mind that. ये बात हमें याद रखनी है कि जब सेंटेंस हमारा इंट्रो एक्सक्लेमेटरी है और वो हेयर और देयर से शुरू हो रहा है तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में रखेंगे. एक्सक्लेमेटरी होना जरूरी है. सिंपल सेंटेंस है तब ऐसी कंडीशन लागू नहीं होती, लेकिन अगर आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो हेयर और देयर से वो सेंटेंस अगर शुरू है और बाद में आपके साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया गया तो वी हैव टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हियर. ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे. The remaining part of present indefinite tense we will discuss in next video. The link of previous videos has been given in description box. You can watch from there. Thank you.